জনসাধারণের ব্যাপক ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 2026 একটি প্রকৃত গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য। भारत माता की वंदे। সমবেত সুনাগরিক ভদ্রমণ্ডলী, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অব জয় এই কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো, সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় RN রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ ঐতিহাসিক কার্যক্রম হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আজকে যে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন এর সঙ্গে রাজ্য সরকার বা সরকারি উদ্যোগ যুক্ত ছিল না। কারণ আমাদের অজানা, আমি সে কথা বলতেও চাই না এই সুপ্রভাতে, কিন্তু আমরা মনে করি পশ্চিমবাংলার জনতা জনার্দন তারা যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে এবারে বন্দে যোগ, যোগ পূজা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় 2,57,000 রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান এই যোগে পার্টিসিপেট করছে। আমার বিশ্বাস আজকে পশ্চিমবঙ্গে গোটা রাজ্যে দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, কোটিরও বেশি মানুষ এই যোগ উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন। আর কলকাতা বিগত দিনের সব রেকর্ড ভেঙে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগে অংশগ্রহণ করবেন। আমি কথা বাড়াবো না, শুধু একটা কথাই বলবো। 1893 সালে বিশ্ববন্দিত যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তিনি এই যোগের সম্পর্কে কি বলেছিলেন আপনারা জানেন। যোগই একমাত্র মুক্তির উপায়, যোগই আনন্দ, যোগী প্রেম এবং যোগের মধ্য দিয়ে মন এবং শরীরের বিকাশ তিনি অনেক আগে বলে গেছেন। এই যোগ পশ্চিমবঙ্গের পুরনো সংস্কৃতি, বেদ, উপনিষদ, গীতা থেকে শুরু করে এই যোগের কথা আমরা সবাই পড়েছি এই সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে। 1920 সালে যোগানন্দ পরমহংসের হাত ধরে এখানে যোগের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার ভাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ 1923 সালে এখানে যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আমি আর কথা বাড়াবো না, এই ইতিহাস আমরা জানি। আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাবো বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে, আর ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিমবাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া, ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে
2026-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ভারতমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী। শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি। Ladies and gentlemen, the global journey of yoga has flourished under the leadership of one statesman who gave India's timeless wisdom a new global voice. This event, as you have heard, is being telecast live across the world, and crores of people in lakhs of places are eager to listen to our beloved Honorable Prime Minister. His unwavering commitment towards preventive health care, holistic living, and human well-being continues to inspire millions around the world. It is now my privilege and profound honor to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly address the nation and the world on the occasion of International Day of Yoga 2026. ये मेरा परम सौभाग्य और अत्यंत सम्मान का दोस्तों, विषय है देश कि के भारत यशस्वी के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय जी से श्री विनम्र नरेंद्र अनुरोध मोदी जी करूं का जोरदार कि तालियों के साथ में स्वागत करें। 2026 के अवसर पर राष्ट्र एवं विश्व समुदाय को संबोधित करें। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्री RN रवि जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत।
स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than
we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। से संतुलित क्रियाओं और कर्मों से संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को
फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। साधकों, माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी और प्रेरणादायक उद्बोधन ने हम सभी के भीतर एक नई ऊर्जा और संकल्प का संचार किया है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से एक बार फिर उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। और अब इस पवित्र प्रांगण में शंख घोषणा के साथ और इस शंख की मंगल ध्वनि के साथ ही योगाभ्यास के लिए मैं प्रीति जी को आमंत्रित करता हूं। मेरुदंड बिल्कुल सीधी रखेंगे, आंखें बंद, और ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा की स्थिति में पहली अंगुली अंगूठे को आपस से मिलाएं, दोनों अंगुलियां, बाकी शेष अंगुलियां सीधी रखते हुए घुटनों पे लाके रखें। योगाभ्यास का प्रारंभ हम प्रार्थना के मनोभाव से करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हुए। आप सभी मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, प्रेम से बोलें, हम सभी ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की बातें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। दोनों हाथों को नीचे ले आएं घुटनों पर। और योगाभ्यास के लिए पहले हम अपने शरीर को तैयार करेंगे। तो शिथिलीकरण के अभ्यास करने के लिए आपके सामने मंच पर 2 अग्रेषक हैं। इसी प्रकार बीच बीच में आपके बीच में अग्रेषक है जिनको देखकर आप अभ्यास कर सकते हैं। तो एक साथ खड़े हो जाएंगे। सहज स्थिति, एड़ी पंजे आपस में मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं से लगा के रखेंगे। ग्रीव
ग्रीवा चालन की क्रिया का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों में 6 इंच का अंतर करें। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अंगुलियां आगे और अंगूठे पीछे की ओर करते हुए कमर पर लाके रखेंगे। पहले आप सूचना पूरी सुनेंगे। श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए सिर को झुकाते हुए गर्दन को नीचे की ओर ठुड्डी के से लगाएंगे, लेकिन जिनके गर्दन में दर्द है वे लोग आगे नहीं झुकाएं। एक साथ शुरू करें। 1 2, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएंगे। 3 4 5 6 7 8। चेहरा सामने। ग्रीवा चालन की अगली क्रिया, गर्दन को दाईं तरफ झुकाएंगे, दायां कान दाएं कंधे से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, फिर चेहरे को बीच में लाएंगे। यही क्रिया बाईं तरफ से दोहराएंगे। तो एक साथ शुरू करेंगे। 1, पहले दाईं तरफ राइट साइड, कंधा ऊपर नहीं उठाएंगे, केवल गर्दन झुकाएं। 2, बीच में। 3, लेफ्ट साइड। 4 5 6 7 8। अगला अभ्यास, श्वास को भरते हुए सिर को दाईं तरफ मोड़ते हुए दाएं कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ देखेंगे, बीच में आके रुकेंगे और बाईं तरफ से यही अभ्यास दोहराएंगे। 1, राइट साइड दाईं तरफ। 2, श्वास बाहर निकालते हुए सामने की तरफ। 3 4 5 6 7 8। और ग्रीवा चालन की चौथी क्रिया के लिए आप पहले ध्यान से सुनेंगे। सिर को नीचे झुकाएंगे, पहले राइट साइड से सिर को गोलाकार घुमाते हुए बीच में लाएं, फिर लेफ्ट साइड से घुमाते हुए बीच में लाएं। ऐसे क्रमवार एक एक बार दोनों तरफ से अभ्यास करेंगे। गिनती के साथ शुरू करते हैं। 1, दाईं तरफ से गर्दन को गोलाकार घुमाएं, आंखें खोल के रखें, चक्षु व्यायाम साथ में। 2, विपरीत दिशा में। 3, बहुत सुंदर अभ्यास। 4 5 6 7 8 9 10। चेहरे को, मुख को ऊपर कर लें, सामने देखेंगे। दोनों हाथ नीचे, सहज स्थिति, समस्थिति में आ जाएंगे। पैरे में एड़ी पंजे मिलाएं। अगला अभ्यास हम करेंगे स्कंद संचालन की 2 क्रियाएं। पहली, स्कंद खिंचाव। आप पहले देखिएगा, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर धीरे धीरे ले जाएंगे, कंधों के समान अंतर रखें, हथेलियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में रखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे ले आएंगे। शुरू करेंगे। 1, हथेलियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में, दोनों हाथों में कंधों के समान अंतर। 2, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। 3 4, हाथों को यहीं रोक लीजिए, 180 डिग्री में रोकेंगे
और अगला अभ्यास हम करेंगे घुटना संचालन। तो शीतलीकरण के अभ्यास हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। घुटना संचालन घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, अंगूठे अंगुली मिलाएंगे, दोनों हाथों को कंधों पे लाएं, स्कंध के लिए कर रहे हैं, कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए सामने कोहनियां मिलाएंगे। श्वास को भरते हुए कोहनियों को गोलाकार घुमाएं, पहले सीधी तरफ से 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा में सामने को मिलाएं, 1 2 3 4 5 में कोहनियां मिलाएंगे और एक साथ दोनों तरफ से घुमाते हुए हाथ नीचे ले आइए, नीचे ले आएंगे हाथ। कटी चालन की क्रिया कमर के लिए, दाएं पैर को दाईं तरफ उठाते हुए कंधों के समान अंतर रखते हुए रखेंगे, दोनों हाथ सामने, हाथों में और पैरों में कंधों के समान अंतर रहेगा, हथेलियां एक दूसरे की तरफ देखती हुई। नाभि से ऊपर के शरीर को दाईं तरफ घुमाते हुए दाएं हाथ पीछे की तरफ, बायां हाथ दाएं कंधे पर और पीछे की तरफ देखेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए बीच में आके रुकेंगे। यही क्रिया बाईं तरफ से करेंगे। एक साथ चलेंगे, 1 राइट साइड, हाथ पीछे की तरफ सीधा, बायां हाथ दाएं कंधे पर, पीछे की तरफ देखेंगे। 2 श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, 3 लेफ्ट साइड में, 4 5 6 7 8। दोनों हाथ इसी स्थिति में रखेंगे, हथेलियों का रुख नीचे की कर देंगे। घुटना संचालन, श्वास को बाहर निकालते हुए घुटनों को नीचे की तरफ मोड़ते हुए कुर्सीनुमा आकार में बैठेंगे, अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार बैठे। 1 2 श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से दोहराएंगे, 3 4, दोनों हाथ नीचे, एड़ी पंजे आपस में मिलाएंगे और फिर से समस्थिति। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन, दोनों हाथों को धीरे धीरे सामने उठाएंगे, अंगुलियां आपस में मिलाएं, ग्रिप बना लीजिए। अंगूठे और अंगुली मिला के रखेंगे, ग्रिप को सामने करें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बिना कोहनियों से मोड़े ऊपर उठा लें, एड़ियों को पूरा ऊपर उठा लीजिए। शरीर का संतुलन बना के रखेंगे, दृष्टि सामने, पूरे शरीर में खिंचाव। बहुत ही उपयोगी आसन, ताड़ के वृक्ष की भांति शरीर की आकृति, ताड़ासन। शरीर की एक एक मांसपेशियों को पुष्ट करता है। श्वास को छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लेकर आए, दोनों तरफ से घुमाते हुए हाथों को एक साथ नीचे लेकर आएंगे। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास पाद हस्तासन, हाथों को सामने की तरफ जंघाओं पे लाएंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ से ऊपर उठाएं, पीछे नहीं मुड़ेंगे, सीधा रहेंगे, हाथ खींच के रखें। अब श्वास को बाहर निकालते हुए सामने की तरफ, कमर से नीचे की तरफ झुकेंगे। दोनों हाथ दोनों पैरों के पंजों के नीचे, सिर को थोड़ा ऊपर उठाएं, सामने देखें। यह पहली स्थिति पाद हस्तासन की। जिनकी कमर में दर्द है वे आगे नहीं झुके, कृपया वे आगे नहीं झुके, जबरदस्ती नहीं करें शरीर से। इसके बाद दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं लाके रखिए, माथा घुटने से लगाएं, यथासंभव घुटने सीधे रखेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सामने की ओर उठते हुए वापस, दोनों हाथ ऊपर और एक साथ दाएं बाएं घुमाते हुए नीचे ले आएं। बहुत ही सुंदर। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन, दोनों हाथों को उठाते हुए कमर पे ले आएंगे,
अंगूठे पीछे की तरफ। दोनों कोहनियों को पूरा पीछे की तरफ कर दीजिए, वक्षस्थल में पूरा खिंचाव। श्वास को भरते हुए सिर को पीछे की तरफ, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दीजिए। आंखों को खोल के रखते हुए ऊपर देखेंगे। पूरा खिंचाव गले की मांसपेशियों पर। लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में सहायक। श्वास को भरते हुए वापस चेहरे को सामने करें। दोनों हाथ नीचे। और अगला अभ्यास त्रिकोण आसन। दायां पैर उठाते हुए दाईं तरफ ले जाते हुए 1 से 1.5 फीट का अंतर करेंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री में। थोड़ा आगे पीछे हो जाएं जगह के लिए। 180 डिग्री में। हाँ, अब पहले श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं तरफ जाएंगे तो दायां पंजा दाईं तरफ मोड़े, हथेलियों का रुख सामने करेंगे और दाईं तरफ झुकते हुए श्वास बाहर निकालते हुए नीचे झुक जाएं। दायां हाथ दाएं पैर के पास, बायां हाथ ऊपर, हथेली सामने, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। त्रिकोण बन रहा है शरीर का, इसीलिए त्रिकोणासन का नाम दिया गया है। हाथों की और पैरों की मसल्स को लचीला बनाता है, मजबूत बनाता है। श्वास को भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। पैर को सीधा करें। अब दाईं तरफ झुकने के लिए दाएं पैर को मोड़ लीजिए और श्वास बाहर निकालते हुए दाईं तरफ झुक जाएं। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखें। बहुत सुंदर अभ्यास आप सभी का। श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। एड़ी पंजे आपस में मिलाएं, हाथ नीचे ले आए। ये हमारे अभ्यास हुए खड़े होकर किए जाने वाले। अब हम बैठ कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो दोनों हाथ सामने लाएंगे, दायां पैर पीछे ले जाते हुए पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब दंडासन की स्थिति में आएंगे तो दोनों हाथों से सहारा लेते हुए पहले दाएं पैर को सीधा करें, फिर बाएं पैर को सीधा करें। दोनों पैर आपस में मिला लें। दोनों हाथ नितंब के पास, कोहनियां सीधी, कमर सीधी, दृष्टि सामने। यह दंड आसन। बिल्कुल मेरुदंड सीधी रखेंगे। और अगला आसन करने के लिए भद्रासन। भद्रासन का अभ्यास करने के लिए बाएं पैर सीधा रखते, पहले दाएं पैर को मोड़ लीजिए, सामने मंच पे देखें। फिर बाएं पैर को भी मोड़ लीजिए। दोनों तल पैर आपस में मिलाएं, एड़ियों को शरीर के नजदीक करें। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ ले, कोहनियां सीधी। घुटनों को यथासंभव जितना नीचे कर सकते हैं उतना नीचे करें, बटरफ्लाई नहीं करेंगे। यह भद्रासन स्थिर रखना है शरीर को। दृष्टि सामने रखें, सामने देखिए। किसी एक बिंदु पर अपने शरीर को स्थिर रखें। शरीर के भीतर भद्रता, स्थिरता लाने में सहायक। फिर से वापस आने के लिए दाएं पैर को सामने ले आए, बाएं पैर को ले आए, दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। और बहुत ही उपयोगी आसन अगला हम करेंगे, वज्रासन। तो बाईं तरफ सहारा लेते हुए दाएं पैर को पीछे मोड़ ले, फिर बाएं पैर को भी मोड़ लीजिए। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। सामने से घुटने कोशिश करें मिल जाएं। पीछे से अंगूठे मिले रहेंगे, एड़ियों को फैला के उसमें बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, मेरुदंड सीधी, सामने दृष्टि। इसे आसनों का राजा कहा गया है क्योंकि एकमात्र यही आसन जो पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है और भोजन के पश्चात भी किया जा सकता है। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करने के लिए घुटनों के बल खड़े होंगे। घुटनों में और पैरों में कंधों के समान अंतर कर दे, दोनों हाथ सामने। अब दोनों हाथ को घुमाते हुए नितंब के ऊपर कमर पे लाके रखें, अंगुलियां नीचे की ओर, कलाई ऊपर। इस तरह से नहीं, पीछे की तरफ रखेंगे। कोहनियां बिल्कुल पीछे कर लीजिए।
और अर्ध चक्रासन की भांति सिर को ऊपर की तरफ से पीछे की तरफ झुका दीजिए, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ें, आंखें खोलें, ऊपर देखें। श्वास बाहर निकालते हुए वापस सामने देखेंगे। इसी स्थिति में रहते हुए उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ को उठाते हुए दाएं तल पैर पे लाएं, बाएं पैर हाथ को उठाते हुए बाएं तल पैर पे लाएं, पीछे गर्दन को ढीला छोड़ दें। जिनसे नहीं होता वो अर्धउष्ट्रासन की स्थिति में रहें, जबरदस्ती नहीं करें शरीर के साथ। ऊंट की भांति, उष्ट्र की भांति आपके शरीर की आकृति मध्य क्षेत्र को मजबूत बनाता है। फिर से वापस आने के लिए दाएं पैर हाथ को उठाएं, बाएं हाथ को उठाएं और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास शशक आसन। मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए दोनों घुटनों में पूरा अंतर कर लें। दोनों हाथ धरती पे लाके रखें, थोड़ा अंतर करते हुए अंगुलियां अंगूठे मिला के रखेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए हाथों को धरती से लगाते हुए सामने लाते हुए कोहनी तक हाथ धरती से लगा के रखें, ठुड्डी धरती से लगाएं। कोशिश करें कि आपके नितंब हिप्स एड़ियों से लगे रहें। जिनकी कमर में दर्द है वो कृपया सामने नहीं झुके। बहुत ही सुंदरता के साथ सभी का अभ्यास। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस शरीर के पास लेकर आए। दोनों हाथ घुटनों पे। उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास करने के लिए इसी स्थिति में पैरों को, घुटनों को खोल के रखते हुए दाएं हाथ को उठाएं, बाएं कंधे पर लाएं, बाएं हाथ को उठाएं, दाएं कंधे पर लाएं। हाथ कान से लगे हुए, सिर मुंह को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए सामने देखें। वापस आने के लिए ऊपर वाले हाथ को उठाते हुए बाएं हाथ को उठाते हुए दाएं तरफ लाएं, फिर दूसरे वाले हाथ को भी ले आए। सामने से घुटनों को मिला लीजिए। और वापस दंडासन की स्थिति में आएंगे तो दायां पैर पीछे, दायां पैर और बायां पैर सामने की तरफ ले आएंगे। दोनों हाथ नितंब के पास। वक्रासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए सामने देखते हुए। दाएं हाथ को ही पीछे धरती पे लाके रखेंगे। दूसरे वाले हाथ को घुटने से लपेटते हुए पंजे के पास ले आए और पीछे की तरफ देखें। जंघा का दबाव पेट पर डालेंगे। विश्राम। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए अब दूसरी दिशा से यही अभ्यास। बाएं पैर को मोड़ेंगे, बायां हाथ पीछे, दाएं हाथ से घुटने को लपेट लें, पीछे की तरफ देखें। फिर से वापस दंडासन की स्थिति में आएंगे। और पेट के बल लेटकर आसनों का अभ्यास करने के लिए थोड़ा सा हाथों का बाईं तरफ सहारा लेते हुए पैरों को पीछे की तरफ घुमाते हुए सिर को मंच की तरफ करते हुए मकरासन की स्थिति में लेट जाएंगे। मकरासन की स्थिति में लेटने के लिए बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, उस पर मस्तक को आप लगा दीजिए। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें। पंजे एक दूसरे की विपरीत दिशा में ढीला छोड़ दीजिए। पैरों में अंतर, पंजे एक दूसरे की विपरीत दिशा में।
श्वास और प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे आपस में मिलाएं। दोनों हाथों को कंधों के पास लाकर इस प्रकार रखें कि कोहनियां भी धरती से लगी रहें। यह पहली स्थिति भुजंगासन की। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। ऊपर की तरफ देखें, पूरा नहीं उठाएं, कोहनी धरती से लगा के रखेंगे। पहली स्थिति कोबरा पोज। श्वास को छोड़ते हुए वापस। अब हथेलियों को कंधों के पास ले आए और कोहनियां ऊपर उठा दें। फिर से श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं। कोहनियां पूरी सीधी नहीं करेंगे, ऊपर देखेंगे। पूरा खिंचाव सामने की तरफ और मेरुदंड पर पूरा दबाव। कमर के लिए बहुत उपयोगी, मेरुदंड को सुदृढ़ बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत उपयोगी भुजंगासन। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे मकरासन में विश्राम करें। शलभ आसन का अभ्यास करने के लिए पैरों को पीछे मिला लीजिए। दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए थाइस के नीचे, जंघा के नीचे रख दीजिए। धरती से लगा के रख दीजिए जंघाओं के नीचे। हथेली ऊपर की तरफ। श्वास को भरते हुए ठुड्डी को धरती से लगा के रखते हुए पीछे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएं। बस ध्यान रखिए कि पैर घुटने से नहीं मुड़े, बिल्कुल सीधा रखते हुए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस पैरों को नीचे लेकर आएं। मकर आसन में विश्राम करें। बायां हाथ सामने की तरफ सीधा करें और बाईं करवट लेते हुए, हाथ का सपोर्ट लेते हुए बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल इस प्रकार लेटेंगे कि सिर आपका मंच की तरफ रहे। शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों में अंतर। दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। सेतु बंद आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। एड़ियों को शरीर के पूरा नितंब के पूरा नजदीक ले आए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल्स को, एड़ियों के ऊपर के हिस्से को पकड़ ले। श्वास को भरते हुए कंधों के और तल पैर के बल पे बीच के पूरे शरीर को, नितंब को पूरा ऊपर उठा दीजिए। एक सेतु की भांति, एक पुल की भांति आपके शरीर की आकृति कंधों के लिए बहुत उपयोगी, इसे कंधर आसन भी हम कहते हैं। बहुत ही सुंदरता के साथ पीछे तक अभ्यास। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे कमर को, नितंब को नीचे धरती पे ले आए। दोनों पैरों को सीधा करें। शवासन में विश्राम करें। उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे तो दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। दोनों हाथ जंघाओं के पास इस प्रकार लाके रखें कि हथेलियां धरती की ओर, धरती से लग जाएं। श्वास को भरते हुए बिना घुटने से मुड़े दोनों पैरों को 30 डिग्री तक, 15 इंच तक ऊपर उठाएं। पंजे सामने खींच के रखें, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे। पंजे सामने खींच के रखें। पेडू क्षेत्र को, एब्डोमेन को स्ट्रांग बनाने के लिए उपयोगी। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैर को नीचे लेकर आए। अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। इसी स्थिति में फिर से पैरों को मिला के रखते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री तक ले आए।
90 डिग्री कोण बनाने के बाद पंजों का रुख धरती की तरफ कर दीजिए, अपने शरीर की तरफ करें, नीचे की ओर झुका लीजिए। बहुत ही सुंदर अभ्यास। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पैरों को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। शवासन में विश्राम। पवन मुक्तासन का अभ्यास अंतिम आसन है हमारा। दोनों घुटनों को मोड़िए और दोनों घुटनों को ऊपर उठाते हुए जंघा का दबाव पेट पर डालेंगे। दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं और ग्रिप अच्छा लगता है तो दोनों हाथों को कोहनियों तक पकड़ लीजिए। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को ऊपर उठाएं, ठुड्डी घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वे सिर नहीं उठाएं। उदर संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए, पेट में बनी हुई गैस से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी, पाचन तंत्र को सुचारू बनाता है। श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे शवासन की स्थिति में आ जाए। और शवासन की स्थिति में दोनों पैरों में अंतर, 1 से 1.5 फीट का अंतर, पैर पंजे एक दूसरे की विपरीत दिशा में ढीला छोड़ दें। मन को बिल्कुल शांत कर लें। दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखते हुए हथेलियों का रूप ऊपर आसमान की ओर, सिर को थोड़ा दाईं तरफ झुकाते हुए ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स कर दें अपने शरीर को। दाएं पैर पर आएंगे। दाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, तल पैर, टखना, एड़ी, घुटना, जंघा, पूरे दाएं पैर को आंतरिक दृष्टि से चित्रित करते हुए हल्का खिंचाव देते हुए ढीला छोड़ दें, शिथिल कर दें। इसी प्रकार बाएं पैर को भी शिथिल करें। बाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना ढीला छोड़ दीजिए। इसी प्रकार दाएं हाथ को ढीला छोड़ें, बाएं हाथ को ढीला छोड़ें। नितंब पर शिथिलता लाएं, उदर क्षेत्र पर शिथिलता लाएं, वक्षस्थल को शिथिल कर दें। गले की समस्त नस नाड़ियों को शिथिल करते हुए दोनों कंधों को भी ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे पर शिथिलता लाएं, आंखों को बंद कर लें, मस्तिष्क को शिथिल कर दें। पूरा शरीर आपका बिल्कुल ढीला, शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। मन में कोई तनाव नहीं है। जिस क्रम में हमने अपने शरीर को शिथिल किया था, उसी क्रम में अब अपने शरीर में चेतना लेकर आएंगे, जागृत करेंगे। दाएं पैर को जागृत कर दें, बाएं पैर को जागृत कर दें। दाएं हाथ को, बाएं हाथ को, नितंब पर, उदर क्षेत्र को, कंधों को, कमर को, हाथों को शिथिल करते हुए चेहरे को शिथिल करें। दोनों कानों को शिथिल रिलैक्स करते, जागृत कर दीजिए पूरे शरीर को। पूरा शरीर आपका अब चेतना युक्त हो गया है। आंखें खोल दीजिए। बाई करवट लेते हुए मंच की तरफ फेस करते हुए बैठ जाएंगे।
अपने शरीर की क्षमता के अनुसार सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिस भी स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, सीधा बैठेंगे। मेरुदंड सीधी, ज्ञान मुद्रा और शुद्धिकरण की क्रिया कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। एक एक सेकंड के 30 राउंड हमें लेने हैं, ऐसे 3 राउंड का अभ्यास करना है। श्वासों को लगातार बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर पीठ से लगेगा। शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5। इस गति के साथ हमें 30 बार अभ्यास करना है। 30 बार अभ्यास पूर्ण हो जाए उसके बाद लंबा गहरा श्वास भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर निकालें, फिर से 30 का राउंड लेंगे। ऐसे 3 बार हम 3 राउंड लेंगे कपालभाति का अभ्यास। आंखें बंद और भाव के साथ लगातार श्वासों पर ध्यान लगाएं। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर जाए उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे, पूरा ध्यान हम लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहे। इस मधुर ध्वनि के साथ भीतर की ओर गहरा उतरें। कपाल यानी मस्तिष्क का अग्रभाग और भाती तेज, ओज, कांति, आभा, ग्लो। कपाल भाती के अभ्यास से चेहरे का ओज बढ़ता है, आभा मंडल विकसित होता है, शरीर के भीतर की सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाती है, मन बिल्कुल शांत और एकाग्र हो जाता है, श्वासों पर नियंत्रण करता है और शरीर के भीतर की श्वासों के साथ मन में ऐसा ही भाव रखें आप कि प्रत्येक श्वास को बाहर निकालते समय मेरे शरीर के भीतर के सारे रोग, मेरे शरीर के भीतर के सारे दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष श्वासों के साथ लगातार बाहर की ओर निकल रहे हैं। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरोग हो रहा हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। इस भाव के साथ लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते रहिए। एक अंतिम राउंड और हम शुरू करेंगे। लगातार श्वासों को बाहर छोड़ें। कपालभाति मधुमेह के रोगियों के लिए, कपालभाति जिनका वजन ज्यादा है उनके लिए, उदर रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी। जिन्हें थायराइड की शिकायत है, टॉन्सिल की शिकायत है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी। लेकिन जिनकी कमर में दर्द है उन्हें नहीं करना, जिन्हें हाइपर एसिडिटी है उन्हें नहीं करना, जिनका बीपी हाई रहता है उन्हें बहुत सहजता के साथ धीमी गति से अभ्यास करना है। विश्राम, आंखें बंद और प्राणायाम का अभ्यास अब हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो दाएं हाथ को उठाएं, अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरें। अब अनामिका और मध्यमा से बाईं नासिका को बंद करते हुए दाएं से राइट साइड से श्वास को बाहर निकालें, फिर राइट से वापस श्वास को भरें और लेफ्ट से निकाल दें। यह एक आवृत्ति हुई, ऐसी हमें 9 आवृत्तियां दोहरानी है। बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। तो ऐसे 9 राउंड्स हमें करने हैं। आंखें बंद, पूरे भाव के साथ जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेना में लगा रहे हैं उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं।
शरीर के भीतर एक एक नस नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम मानसिक चेतना के स्तर पर कार्य करता है। जिन्हें नजला, जुकाम, खांसी, साइनस, श्वास एलर्जी की शिकायत है, उनके लिए बहुत उपयोगी। प्रतिदिन 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर के भीतर की सारी नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। जिनकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, बहुत उपयोगी उनके लिए। दोनों हाथों को नीचे ले आए। इसके बाद अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम, जो शरीर के भीतर शीतलता लाता है। आप करने की विधि पहले सामने देखेंगे। काकी मुद्रा लगाते हैं, होठों को गोल करते हैं, जीभ को बाहर निकालते हैं तो एक जीभ का पाइप बनता है, इसे काकी मुद्रा कहते हैं। इस पाइप से धीरे धीरे श्वास को भीतर भरना है। शुरू करें। धीरे धीरे श्वास को भीतर भरें, मुंह को बंद करें और दाएं हाथ को उठाते हुए दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, तेजी के साथ नहीं छोड़ें। 3 बार अभ्यास करेंगे। दूसरी बार अभ्यास करें। एक बार और अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ नीचे ले आएंगे और अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए अंतिम प्राणायाम अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल के अनुसार ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। 2 प्रक्रिया हम करते हैं। पहली स्थिति, दाईं हथेली नाभि पे, बाईं हथेली ऊपर, दोनों कोहनियां सीधी सामने। लंबा गहरा श्वास भीतर भरेंगे और मुंह को बंद रखते हुए श्वास को इस प्रकार तेजी के साथ बाहर निकालेंगे जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है। 3 बार अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद। शुरू करें। ब्राह्मरी प्राणायाम की दूसरी स्थिति क्षणमुखी मुद्रा के साथ। दोनों हाथ उठाइए। पहली अंगुली ललाट पर, मध्यमा आंखों नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए शेष अंगुलियां इस प्रकार मिलाएं कि नासिका बंद नहीं हो। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करेंगे कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे। फिर से पूरा गहरा श्वास भरें और मुंह को बंद रखते हुए भंवरे के गुंजन की ध्वनि के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे।
आंखें कोमलता से बंद रखते हुए दोनों हाथ नीचे ले आए। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और ध्यान की स्थिति के लिए अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर रखते हुए आती और जाती हुई श्वास को सहजता के साथ देखने का, अनुभव करने का प्रयास करेंगे। हाथों को, कंधों को से बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए भीतर की ओर से अनुभव करें। भीतर की ओर जाती हुई श्वास को अनुभव करें, बाहर की ओर आती हुई श्वास को महसूस करें। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। श्वासों के स्थिर होते ही मन भी स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, मौन हो जाता है। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए एक दिव्य रोशनी को महसूस करें। प्रातः काल की इस बेला में इस मंद मंद बहती हुई हवा को महसूस करें। इस बांसुरी की ध्वनि के साथ मन को लयबद्ध कर दीजिए, बिल्कुल शांत के। मन में बिल्कुल शांति, तन और मन में कोई विचार शेष नहीं है। और शरीर के भीतर की सारी नकारात्मकता दूर हो गई है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर मा अमृतम गमय की स्थिति के साथ अपने प्रभु को स्मरण करते हुए आंखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। हथेलियों को आपस में रगड़ें और गर्म करें। गर्म और उष्ण हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए दोनों आंखों को ढक लीजिए। अक्षुओं का अंजन करेंगे। हथेलियों के बीच में आंखों को कोमलता के साथ खोलें। उष्णता को ग्रहण करें। दोनों ओर से चेहरे पर घुमाते हुए मसाज करते हुए हाथ नीचे ले आएंगे और शांति पाठ के साथ हम इस सत्र को आगे की ओर ले जाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अपनी जगह आप सभी शांति के साथ बैठे रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आप सभी को संकल्प दिलाएं। बहुत बहुत आभार प्रीति जी और इनके तमाम साथियों का। साहिबान, अरावली की इन वादियों की गूंज और आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि के बीच अब हम निवेदन करते हैं बहुत ही आदर, सम्मान और करबद्ध प्रार्थना के साथ
राजस्थान के करोड़ों निवासी प्रदेशवासियों के भरोसे के प्रतीक हमारे यशस्वी, जनप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी को कि वो मंच पर पधार कर अपने उद्बोधन से, अपने आशीर्वचनों से हमें नवाजें। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर स्वागत। और संकल्प के लिए हम निवेदन करते हैं कि अपने अपने स्थानों पर एक बार आप खड़े होने की कृपा करें। सभी आगंतुक साधकों से निवेदन है कि संकल्प के लिए अपने अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाएं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य, स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य एवं समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूं। अब सभी जनों से निवेदन है कि मेहरबानी करके अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि अपने आशीर्वचनों से हमें नवाजें। आज के इस 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी जी, इस सिरोही जिले के प्रभारी और हमारे दूसरे राज्य मंत्री के बिश्नोई जी, जालौर सिरोही के सांसद श्रीमान लुम्माराम चौधरी जी, आबू पिंडवाड़ा के विधायक श्री समाराम जी, हमारी पार्टी के जिले की अध्यक्ष रक्षा भंडारी जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, और आज के इस योग दिवस के अवसर पर यहां आए सभी मेरे भाई और बहनों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस गौरवशाली दिवस पर अरावली की पावन गोद में बसे आबू राज्य में ये योग करने का अवसर मिला है। आबू राज्य की ये भूमि अध्यात्म की भूमि है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की भूमि है, ये प्रकृति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम है। यहाँ की निर्मल वायु, भरपूर हरियाली और आध्यात्मिक वातावरण योग की मूल भावना को साकार करते हैं। साथियों, योग को देश की सीमाओं से परे पहुंचाने का श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके दूरदर्शी प्रयासों और वैश्विक कूटनीति की बदौलत ये योग को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिल सकी है। सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने पहले संबोधन में
प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को योग से परिचित कराया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। उनके नेतृत्व में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक शक्ति और वैश्विक नेतृत्व का सम्मान है। आज योग विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जैसे योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ता है, वैसे ही योग आज विश्व को भी जोड़ रहा है। मेरे भाइयों, अगर हम अपना काम अनुशासन से करते हैं तो अपना दायित्व निभाते हैं, तो ये एक तरह का योग ही होता है। इसी मंत्र को साकार करते हुए योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाकर भारत ने सॉफ्ट पावर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। साथ ही योग को कर्मयोग से जोड़कर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के तौर पर विकास की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। साथियों, आपको याद होगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ, जहां प्रधानमंत्री जी के साथ 35,985 लोगों ने एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान को भी योग में विशेष पहचान मिली है। वर्ष 2018 में कोटा में 1,05,000 से अधिक लोगों ने एक साथ योग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मुझे गर्व है कि वर्ष 2025 में योग संगम पोर्टल पर 85 लाख से अधिक प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। ये थीम इस बात पर केंद्रित है कि योग केवल युवाओं तक सीमित नहीं, बल्कि यह बढ़ती उम्र के लोगों को भी शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से संतुलन और भावनात्मक रूप से मजबूत रखने का सशक्त माध्यम है। यह हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है कि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा आज मानवता के कल्याण का वैश्विक माध्यम बन चुकी है। योग भारत की 5,000 साल पुरानी विरासत है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर, आत्मा को जोड़ने वाली जीवन पद्धति है। हमारी सनातन परंपरा में योग को जीवन को संतुलन और सफल बनाने का मार्ग माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में योग को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। योग के शारीरिक और मानसिक लाभ भी अनगिनत हैं। यह शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, तनाव, चिंता और क्रोध को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को मजबूत करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आधुनिक विज्ञान भी आज योग की महत्ता को स्वीकार कर रहा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार नियमित योग करने से स्मरण शक्ति और मानसिक क्षमता में सुधार होता है। एम्स के अध्ययन में पाया गया कि नियमित प्राणायाम करने से कई लोगों के रक्तचाप और शुगर की दवाओं की आवश्यकता कम हुई है। यहाँ तक कि नासा के अंतरिक्ष यात्री भी तनाव कम करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। आज पूरी दुनिया तनाव, मानसिक दबाव, बदलती जीवन शैली और अनेक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में भारत की योग परंपरा मानवता को स्वस्थ और संतुलन जीवन का मार्ग दिखा रही है। योग, ध्यान और प्राणायाम आज विश्व के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। योग ने यह सिद्ध कर दिया है कि स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि सही जीवन शैली से भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारी परंपराओं में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। योग उस निरोगी काया की प्राप्ति का
सबसे सरल और सहज और प्रभावी माध्यम है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए किसी विशेष संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके लाभ जीवन भर साथ रहते हैं। नियमित योग अनेक बीमारियों की रोकथाम में सहायक है और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाता है। हमारा प्रयास है कि योग केवल एक दिन का कार्यक्रम न रहे, बल्कि प्रत्येक परिवार की दिनचर्या और प्रत्येक नागरिक की जीवन शैली का हिस्सा बने। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ परिवार का निर्माण करता है, स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज ही विकसित राष्ट्र की नींव बनाता है। विकसित राजस्थान, विकसित भारत के हमारे संकल्प में स्वस्थ, जागरूक और ऊर्जावान नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए योग केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी आधार है। मैं प्रदेश के युवाओं, मातृशक्ति, विद्यार्थी, वरिष्ठ जनों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। इसी विश्वास और संकल्प के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से आप इसे अपनाओगे, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। इस आशा और विश्वास के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में अब मैं अनुरोध करूंगा प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ साहब, श्री के विश्नोई साहब, राज्य मंत्री महोदय, श्री ओटाराम देवासी साहब, श्री लूंबाराम चौधरी, श्री समाराम गरासिया जी, श्रीमती रक्षा भंडारी साहिबा, भारतीय जनता पार्टी सिरोही की जिला अध्यक्ष महोदया, और मुख्य सचिव श्रीमान वी श्रीनिवास जी साहब से कि आप मंच पर पधारें और शांति और निरोगे राजस्थान के प्रतीक स्वरूप इन गुब्बारों का विसर्जन करके संपूर्ण राजस्थान और देश में शांति का संदेश पहुंचाने की कृपा कराएं। अच्छा, इसको ऐसे सिर्फ छोड़ना है ना, इसको थोड़ा नीचे करिए। अभी एक बार नीचे करके, एक बार नीचे रखिए। हाँ बस, अब छोड़ेंगे। साहिवान, अरावली की वादियों में उड़ते ये सफेद गुब्बारे सच्ची शांति और निरोगे राजस्थान का संदेश दे रही है। धन्यवाद हमारे तमाम माननीय अतिथि गणों महोदयों का। आसमान को छूते इन श्वेत गुब्बारों के साथ ही नक्की झील के इस सुरम्य तट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का यह महाअनुष्ठान अब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। हम भरपूर करतल ध्वनि के साथ धन्यवाद करते हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी और माननीय राज्य मंत्री महोदय श्री के विश्नोई साहब, माननीय राज्य मंत्री महोदय श्री ओटाराम देवासी, श्री लूंबाराम चौधरी, माननीय सांसद महोदय जालौर और सिरोही, श्री समाराम गरासिया जी, माननीय विधायक महोदय आबू पिंडवाड़ा, श्री अर्जुन राम पुरोहित, माननीय जिला प्रमुख महोदय, श्रीमती रक्षा भंडारी साहिबा, जिला अध्यक्ष